قومی سیاست میں ہلچل، حکومت کے بڑے اتحادی کا حکومت کے بڑے مخالف سے رابطہ۔ بلاول ہاؤس لاہور میں اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی آصف علی زرداری سے ون آن ون ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان 1 گھنٹہ ملاقات جاری رہی۔ پرویز الہی نے آصف زرداری کو چودھری شجاعت کا خصوصی پیغام پہنچایا۔ سابق صدر نے خود چودھری پرویز الہی کا استقبال کیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی میڈیا سے گفتگو کیے بغیر چلے گئے۔ شوگر اسکینڈل میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی ایف آئی اے لاہور میں پیشی۔ 5 رکنی ٹیم نے 1 گھنٹے تک سوالات کیے۔ شہباز شریف نے 20 میں سے صرف 4 سوالوں کے جوابات دیے۔ تحقیقاتی ٹیم کو مطمئن نہ کر سکے۔ شہباز شریف کو دوبارہ طلب کیے جانے کا امکان۔ شہباز شریف کی پیشی کے موقع پر لیگی کارکنوں اور پولیس میں دھکم پیل بھی ہوئی۔ ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کہتی ہیں، نیب نیازی کی ناکامی کے بعد ایف آئی اے نیازی گٹھ جوڑ ہو گیا۔ آٹا چینی رنگ روڈ چوروں کو این آر او دے دیا گیا۔ بجٹ پر خاموش کرانے کے لیے شہباز شریف کی پیشیاں کروائی جا رہی ہیں۔ شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات میں اہم انکشافات۔ شہباز شریف اور بیٹوں نے 25 ارب کی منی لانڈرنگ ذاتی ملازمین کے نام پر کی۔ شوگر ملز ہی کے 20 ملازمین کے بینک اکاؤنٹس استعمال کیے۔ رقوم وصولی کے لیے شہباز شریف کا کیمپ آفس استعمال ہوا۔ سلیمان شہباز کے دفتر سے رقم بذریعہ ہنڈی حوالہ بیرون ملک بھیجی جاتی تھی۔ پاکستان امریکہ کو فوجی اڈے دینے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اڈے دیے تو دہشت گرد حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ افغان امن میں شراکت داری کے لیے تیار ہیں لیکن اڈے نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا امریکی اخبار میں مضمون، کہا امریکہ 20 سال میں افغان جنگ نہیں جیت سکا تو پھر اڈے دینے سے کیا فرق پڑے گا؟ افغانستان میں ہمارا کوئی فیورٹ نہیں، طالبان کو بھی حکومت سازی میں شریک کیا جائے۔ امید ہے افغان حکومت پاکستان پر الزام تراشی کے بجائے امن مذاکرات میں لچک دکھائے گی۔ وزیر اعظم ملک کے لیے سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں۔ ایٹمی پروگرام سے متعلق وزیر اعظم کا بیان قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ افغانستان اور کشمیر سے متعلق خان صاحب کے بیان بھی سیکیورٹی رسک ہیں۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں عمران خان کے سہولت کاروں کو کب معلوم ہوگا؟ لیگی رہنما احسن اقبال کہتے ہیں عمران خان کو غیر ملکی طاقتیں اقتدار میں لائیں۔ غیر ملکی ڈونر ایٹمی پروگرام ختم کرانا چاہتے ہیں۔ مسئلہ کشمیر حل ہو نہ ہو، ایٹمی پروگرام پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ موجودہ حکومت نے سی پیک کو متنازع بنایا۔ چین سے $400 بلین کا پیکج ایران لے گیا۔ بھارتی وزیر خارجہ نے افغان طالبان سے ملاقات کی کوشش کی لیکن افغان طالبان نے انکار کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ بھارتی حکام افغان طالبان سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی پروگرام دی رپورٹرز میں خصوصی گفتگو، کہا امریکہ نہیں چاہے گا افغانستان میں دہشت گردوں کو پاؤں جمانے کا موقع ملے۔ ہم بھی افغانستان میں امن کے خواہاں ہیں۔ ہم نے ماضی کے تجربات اور قومی بالادستی کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا۔ امن کے شراکت دار ہو سکتے ہیں، کسی جنگ کے نہیں۔ بھارت سے تربیت یافتہ 2 دہشت گرد میرپور خاص سے گرفتار۔ ملزمان کا واسع جلیل اور انیس ایڈوکیٹ سے رابطوں کا انکشاف۔ ملزمان سے بڑی تعداد میں جدید اسلحہ بھی برآمد۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کہتے ہیں ملزمان کے مطابق کارکنان کو بھارت بھیجنا بانی ایم کیو ایم کی پالیسی تھی۔ ایم کیو ایم کے 2 بڑے رہنما لڑکوں کو بھارت بھیجتے تھے۔ فاروق ستار کو بھی بلا کر وضاحت لی۔ انیس ایڈوکیٹ کو ملک چھوڑنے سے روک دیا۔ امریکہ میں موجود واسع جلیل کی گرفتاری کے لیے بھی لکھا جائے گا۔ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ اجلاس میں ہدایت، کہا مہنگائی میں کمی اولین ترجیح ہے۔ کوشش کر رہے ہیں غریب آدمی کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے۔ وزیر اعظم کو اشیاء خورونوش کی قیمتوں پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں ملک میں گندم کی تاریخی پیداوار ہوئی۔ بڑھتی ہوئی آبادی کے باعث گندم درآمد کرنے کی منظوری دی گئی۔
मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन की किल्लत, वजीर आला सिंध ने मलबा विफाक पर डाल दिया। कहते हैं किसी सूबे को वैक्सीन खरीदने की इजाजत नहीं दी गई, सब विफाक से आ रही हैं। हमें कहा गया था कि आप वैक्सीन सप्लाई की फिक्र ना करें। बदकिस्मती से पूरे पाकिस्तान में वैक्सीन की शॉर्टेज हो गई है। जो वैक्सीन विफाक को मिल रही है उसकी कीमत भी हमें नहीं बता रहे। हमने रोजाना 2 लाख वैक्सीनेशन का टारगेट रखा हुआ है। चाहते हैं 1 करोड़ 80 लाख अफराद को 3 माह में वैक्सीन लगाए। तेरह साल से सिंध पर पीपी की हुकूमत है, कराची की अपनी पुलिस ही नहीं। वफाकी वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी कहते हैं जितना पैसा सिंध को दिया उससे तो पेरिस बन जाना चाहिए था। अपोजिशन मंसूबा बंदी के तहत अगले इलेक्शन को धांधली ज़दा करार दे रही है। इनको पता चल गया है कि अगले 5 साल भी इमरान खान के ही होंगे। बिलावल विफाक को इतना मिस करते हैं तो दरख्वास्त दे दें कि सिंध में हुकूमत नहीं कर सकते, विफाक टेक ओवर कर लेगा और अच्छा ख्याल रखेगा। माहवन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं सिंध से पैसा अयान अली के जरिए बाहर जाता था। वजीर इत्तलाआत सिंध नासिर शाह का जवाब, कहा हैरान हूँ शहबाज गिल जैसे फारिग लोग सिंध हुकूमत को गालियां देते हैं। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से चैनल्स का एयर टाइम खराब हुआ जिसकी विफाक अदायगी करे। मुर्तजा वहाब ने कहा कमर तोड़ महंगाई ने अवाम से जीने का हक छीन लिया। मुतासिब तर्जुमान 2 अल्फाज महंगाई पर भी बोल देते। वजीर आजम इमरान खान का अमरीकी न्यूज चैनल HBO को इंटरव्यू क्यों एडिट किया गया। हुकूमत का मामला HBO इंतजामिया के साथ उठाने का फैसला। जिनसी हरासानी से मुताल्लिक जवाब का बड़ा हिस्सा नशर नहीं किया गया। जराए का कहना है HBO की जानिब से इंटरव्यू का मजीद हिस्सा भी एडिट किया गया। वजीर आजम का हिंदुत्वा सोच से मुताल्लिक बयान सेंसर किया गया। पाकिस्तान के सरकारी टीवी के पास इंटरव्यू का मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है। वजारत इत्तलाआत को मामला HBO इंतजामिया से उठाने की हिदायत। वजीर आजम का इंटरव्यू सेंसर किए जाने की वजाहत तलब की जाएगी। वजीर आजम का खवातीन के लिबास पर बयान अफसोसनाक है। खवातीन के लिबास का रेप से कोई ताल्लुक नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं उसामा, एटमी प्रोग्राम और कश्मीर पर वजीर आजम के बयानात सिक्योरिटी रिस्क हैं। वो आलमी फोरम्स पर सोच समझ कर बयानात दें। वजीर आजम के पर्दे से मुताल्लिक बयान के दिफा के लिए PTI की खवातीन सामने आ गईं। वजीर ममलिकत जरताज गुल ने कहा कोई लिबरली करप्ट हमारी तर्जुमानी ना करे। कमल शोजब का कहना था वजीर आजम से लड़ाई करने वाले अल्लाह से लड़ रहे हैं। कौन सी माँ चाहेगी कि अपनी बच्ची ऐसे हुलिये में बाहर भेजे कि हमला हो जाए। मलिका बुखारी ने कहा बच्चियों और औरतों से रेप पहले भी होते थे। इमरान खान पहले वजीर आजम हैं जिन्होंने खुसूसी अदालतें बनाई। बजट में 100 मिलियन खवातीन के लिए एंटी रेप सेल के लिए मुख्तस किए गए। PSL 6 के फाइनल में रसाई की जंग। सेमीफाइनल बन जाने वाले एलिमिनेटर 2 में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने। पेशावर ने टॉस जीतकर फील्डिंग संभाल ली। टीम में एक तब्दीली के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग जारी। पेशावर की टीम में भी 2 तब्दीलियां। फातेह टीम जुमेरात को फाइनल में मुल्तान सुल्तान से टकराएगी। यूनुस खान ने कौमी टीम के बैटिंग कोच का ओहदा छोड़ दिया। PCB और यूनुस खान ने इत्तफाक राय से राहें जुदा कर ली। तबसरे से गुरेज पर भी इत्तेफाक। PCB चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान का कहना है यूनुस खान जैसी कदावर और तजर्बेकार शख्सियत को खोना अफसोसनाक है। जराए के मुताबिक यूनुस खान कैंप में मोहम्मद यूसुफ की मुदाखलत और टीम सिलेक्शन में किरदार न होने पर नाखुश थे। बोर्ड से मुस्बत जवाब न मिलने पर कैंप छोड़कर लाहौर से कराची आ गए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से चोरी नहीं रुकेगी, निज़ाम को बदलना चाहिए। हुकूमत मुस्तकबिल में धांधली में आसानी के लिए इंतखाबी इस्लाहात कर रही है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मुल्क को आइन के मुताबिक चलना चाहिए। हमारे दरवाजे हर एक के लिए खुले हैं। स्पीकर कौमी असम्बली पर अदम एतमाद हो चुका। जितनी जल्दी घर चले जाएं तो उतना ही अच्छा होगा। वजीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। 16 निकाती एजेंडा मंजूर। पहली स्पोर्ट्स पॉलिसी की भी मंजूरी। खिलाड़ियों की फलाह व बहबूद के लिए स्पोर्ट्स एंडोमेंट फंड कायम करने का फैसला। 200 देहात में खेलों के मैदान बनाए जाएंगे। 1873 में तश्कील करदा इरिगेशन एक्ट में तरामीम।
332 सहूलत बाजारों में 10 किलो आटे का थैला 430 रुपए की इमदादी नर्ख पर देने की भी मंजूरी। सिटीजन पोर्टल पर शिकायत के हल में गफलत बरतने पर वजीर आजम का नोटिस। डीजी FIA को मुतालिका अफसरान फौरी मुअत्तल करने की हिदायत कर दी। खातून की 5 बार शिकायत के बावजूद FIA ने कार्रवाई नहीं की। खातून ने हिरासगी के बायस यूनिवर्सिटी से नौकरी छोड़ दी थी। तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट का पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा मसूद अब्बासी को शो कॉज नोटिस आइंदा समात पर तलब कर लिया। पैमरा FIA को तौहीन आमेज मवाद पर मबनी वीडियो से मुताल्लिक रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मसूद अब्बासी की तकरीर बादियुन नजर में तौहीन अदालत है। बिलालगंज लाहौर से 2 पड़ोसी बच्चियों का मुबैना अगवा 9 साला ताहिरा और 13 साला फिजा चीज लेने गई थी, वापस नहीं आई। दोनों के वालिद रिक्शा चलाते हैं। थाना रायविंड सिटी में मुकदमा दर्ज, तलाश जारी। मौलाकंड के नवाही गांव से मदरसे के 6 बच्चे लापता। 4 दिन गुजर गए, कोई सुराग न मिल सका। 10 से 14 साल उम्र के बच्चे आपस में कजिन हैं। वालिदैन का कहना है बच्चे छुट्टी गुजार कर वापस मदरसे जा रहे थे, रास्ते में लापता हो गए। थाने में रिपोर्ट दर्ज। FIA हिरासत में मुल्जिम की खुदकुशी का मामला, लाश पोस्टमार्टम के लिए हस्पताल भिजवा दी गई। डायरेक्टर FIA ने फौरी तौर पर SHO समेत 4 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। इंक्वायरी के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम। 1 हफ्ते में हकाइक का जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। खानपुर में पहाड़ी तोदा गिर गया, मलबे से एक मजदूर की लाश निकाल ली गई। जाँ बहक मजदूरों की तादाद 3 हो गई। पुलिस का कहना है क्रैश मशीन मालिकान ने मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की और असखुद इमदादी कार्रवाई करने की कोशिश की। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कराची समेत सूबे की 689 इमारतों को मखदूश करार दे दिया। कराची की 556, मीरपुर खास की 42 और हैदराबाद की 40 इमारतें शामिल। SBCA का मखदूश इमारतों के मकीनों को इमारतें खाली करने का हुक्म। वैक्सीन लगवाओ या जेल जाओ, फिलिपाइन के जारह मिजाज सदर ने खबरदार कर दिया। कौम से खिताब में कहा, वैक्सीन न लगवाने वालों को ऐसी जेल में डालूंगा जो इंतहाई गंदी और बदबूदार हैं। मौसूफ ने पहले लॉकडाउन की पाबंदी न करने वालों को गोली मारने की धमकी भी दी थी। और आलमी शोहरत याफ्ता कवाल अमजद साबरी की 5वीं बरसी पर मद्दा सोगवार। अमजद साबरी को 2016 में दहशतगर्दों ने उनके घर से कुछ फासले पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। अमजद साबरी की कवालियां आज भी सुनने वालों पर वज्द तारी कर देती हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।